Good morning, students. How is it going? I hope you all must be doing great and staying happy. I'm your English teacher, Sudha ma'am, and today we will do revision of class 4th English subject. Your thought for today is this: don't make your voice loud to make others listen to you, but make your nature so loving that the others beg to listen you. I repeat the thought of the day. Don't make your voice loud to make others listen to you, but make your nature so loving that others beg to listen you. This thought of the day means that आपको आपकी आवाज़ ऊंचा नहीं रखना चाहिए ये सोचकर कि लोग आपको सुनेंगे। इसके बजाय आपको अपनी आवाज़ यानी आपकी वॉइस पोलाइट रखनी है, नेचर को गुड रखना है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपको सुनने के लिए बेचैन हों। और दूसरी बात, आप ये ना सोचें कि आप तेज़ से बोलेंगे, ज़ोर से बोलेंगे तो लोग आपसे सुनेंगे। इसके बजाय कि आप तेज़ से बोलें और लोग डर जाएं और आपकी आवाज़ को ना सुने। तो इसलिए इस थॉट से ये सीख मिलती है कि आपको अपने नेचर को गुड रखना है और वॉइस को पोलाइट रखनी है और सबसे प्यार से बोलना है। सो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रन. Now class 4th, I'm going to show you your syllabus of half yearly exams which are going to start from 8th of November, that is Sunday. This is your Marigold book. I'm telling the syllabus for the English first subject. Okay children, class 4th आपके Marigold book से आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक सारे चैप्टर्स आने वाले हैं. Okay, I'll show you the index column first. This one, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5. Children, I have already finished with unit 1, 2, 3, 4 and 5 and have given all the work written in the copy and book work also we have done. Okay, so let's begin with the revision of unit 2. Today we'll do the revision of unit 2, that is noses, and lesson the little fir tree. In the previous video we have already finished with wake up and Neha's alarm clock, unit 1, and I had already given you test for this. Now we will do noses. Before we start with the noses revision, I want to tell you the syllabus. I want to repeat the syllabus of English 2nd, that is grammar. So children, this is your grammar book, Colleen's English Grammar and Composition book. आपको ग्रामर में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं मैं आपको बता दूं. So children, we have turned the page and the index column is here from lesson 1 to lesson 8. Chapter 1, nouns revision. Chapter 2, common noun and abstract noun. Chapter 3, collective noun. Chapter 4, countable and uncountable nouns. Chapter 5, nouns gender. Chapter 6, nouns possession. Chapter 7, subject and predicate. Chapter 8, adjectives. मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए थे, अच्छे से पढ़ा दिया था, आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको इसको कॉपी में फिल करना है, बुक में फिल करना है, देन आपको उसको कॉपी में भी राइट करना है. तो चिल्ड्रन आप डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन भी आएंगे और आपके बुक के एक्सरसाइज और कॉपी का वर्क आपको अच्छे से पढ़ना है. इसके साथ ही आपको ऐसे पढ़ना है दिवाली पर ऐसे है. मैंने आपको 10 लाइन्स लिखवाए हैं, आप चाहें तो 5 लाइन्स को अच्छे से विद स्पेलिंग लर्न करके आपको एग्ज़ाम में राइट करना है. सो दैट्स ऑल फॉर द सिलेबस नाउ एंड वी विल स्टार्ट विद द रिविजन. सो चिल्ड्रन, दिस इज योर यूनिट 2.
your first poem from Unit 2, Chapter Noses. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. Children, in this poem there is a child. Okay, this child is looking in the mirror and watching its nose. So when she sees her nose in the mirror, she feels to smile and laugh because it looks funny for her. इस पोयम में एक बच्ची है जो मिरर यानी शीशे आईने में अपने चेहरे को देखती है और फिर अपने नोज़ को देखती है और नोज़ देखकर उसे लगता है कि मेरी नोज़ जो है वो कैसे ग्रो हो रही है, वो बहुत ही फ़नी थिंग है, यानी मजाक वाली बात है कि हंसने वाली बात है कि इसकी जो नोज़ है वो स्ट्रेट ग्रो होती जा रही है और उसके जो 2 होल्स हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं विथ 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, जहाँ से हम सांस लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल से वो उसको दिखाई देती है. सेकेंड पैराग्राफ. I looked in the mirror and saw it's in there, the end of my chin and the start of my hair. So children, in this second paragraph, the child is saying that मैं जब मिरर में अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने चिन को भी देखती हूँ. चिन जहाँ से मेरा जो हेयर है वो चिन के पास ही है और मेरी नोज़ और मेरी चिन ऐसी स्ट्रेट लाइन में है कि मुझे लग रहा है कि मेरी जो नोज़ है वो चिन से जुड़ी हुई है, स्टक है. एंड बिटवीन देयर isn't much space to spare with my nose. उसे लग रहा है कि दोनों जो हैं चिपके हुए हैं, नोज़ और चिन, और ज़्यादा स्पेस नहीं है दोनों में. लाइक ए हैंडल, उसको अपनी नोज़ हैंडल की तरह लग रही है फेस पे. स्टिकिंग देयर, जो चिपकी हुई है वहाँ पर. थर्ड पैराग्राफ. इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, गिगल मीन्स गुदगुदाना होता है, तो अगर आपका मन कर रहा है गुदगुदाने का और चिल्लाने का, शाउट मीन्स चिल्लाना, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट. अगर आपका मन है हंसने का, खूब खेलने का और गुदगुदी करने का किसी को, तो गुदगुदाइए और हंसिए और फिर अपने नोज़ को देखिए वो कैसी फूल जाती है और फनी लगती है. ओके, टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट. अगर आपको हंसने का मन कर रहा है तो आप हंसिए और अपनी नोज़ को देखिए मिरर में. जस्ट लुक इन द मिरर, यानी देखिए मिरर में. एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज़ टेक्स आउट. और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए आपकी नोज़ कैसे बाहर निकल रही है स्ट्रेट, और आपको वो बहुत ही अजीब लगेगी और आपको हंसना आएगा. सो दिस वाज द पोएम चिल्ड्रन ऑफ नोजेस, जिसमें एलिन फिशर ने नोज़ के बारे में डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक गर्ल है जो नोज़ को अपने देखती है मिरर में और उसे कह रही है कि ये जो है बहुत फ़नी थिंग है और किस तरीके से ये स्ट्रेट ग्रो होती है. और कभी कभी वो अपने फेस को देखती है तो नोज़ और चिन को देखती है. चिन जहाँ पर उसका जो हेयर है, जो प्लेट्स उसने बांध रखे हैं 2, ये वहाँ पर उसके बगल ही उसकी चिन है. चिन मीन्स थोड़ी होती है ये चीज़, ये पार्ट. सो उसे लगता है कि कभी कभी कि नोज़ और चिन जो है चिपकी हुई है स्ट्रेट एक दूसरे से. So this was the poem children. Now we will do the word meaning of noses and question answers. First see the exercise children. Look at your friend's face and describe what to see. आप अपने फ्रेंड के नोज़ को, फेस को देखिए और डिस्क्राइब करिए कैसा है. तो मैंने लिखवाया है बुक में, My friend's eyes are big and her face is round. Now next question is, what is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. My favorite fruit is mango. And then in this page number 21 we have to write some words related to the fruit. जैसे कि how does it smell? कैसी स्मेल होती है मैंगो की? स्वीट स्मेल होती है.
हाउ डज इट लुक्स, कैसा दिखता है, येलो इन कलर। देन हाउ डज इट फील, सॉफ्ट एंड प्लपी, उसको छूने पर सॉफ्ट और बहुत ही प्लपी लगता है, मुलायम लगता है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक्स, जब आप उस फ्रूट को खाते हो यानी कि मैंगो को जब खाते हो तो कैसा लगता है, स्मूथ और सॉफ्ट होता है, उसमें से कोई आवाज़ तो नहीं आती लेकिन वो उसको टच करने पर वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ साउंड करता है। हाउ डज इट टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है इसका, स्वीट होता है और सार होता है, यानी मीठा और खट्टा भी। So this was the exercise. Now we will do word meaning and question answers of noses. These are word meanings. Mirror, mirror means दर्पण या आईना या शीशा, जो भी आप कहते हो। Funniest, funniest means मजाकिया। Stuck यानी अटका हुआ। Grow, grow यानी बढ़ना। Show, show means दिखना। Hole, छिद्र। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। देन चिन, चिन क्या होती है, ठोड़ी होती है। अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, ओके, आपके फेस के ठोड़ी को हम चिन कहते हैं। देन स्पेयर, स्पेयर मीन्स अतिरिक्त। गिगल, खिखियाना। शाउट, चिल्लाना। डाउट, संदेह करना। फीचर्स, विशेषता। स्टिकिंग मीन्स चिपका हुआ। ये थे वर्ड मीनिंग्स। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग। पोएट को क्यों ऐसा लगा कि जो उसकी नाक है वो बहुत ही फनी है, बहुत ही मजाकिया चीज़ है। तो आंसर होगा द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज it is stuck on the face like a handle and it has two little holes. Next question, why is your nose important for you? Nose is important because the two little holes in it helps us breathing. Does the child in the poem likes her nose? Why? Yes, the child likes her nose. She considers it to be a funny thing which sticks out just like a candle. So these were 3 question answers, children, and your book exercise also you will learn and word meaning. Now next chapter in unit 2 is the little fir tree. So children, we will do revision. We will revise this story again and revise all the word meaning and question answers. The Little Fir Tree from Unit 2. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. तो शेट्टी नाम का एक जादूगर था, वो अपने घर वापस लौट रहा था। तो रास्ते में अचानक से जोर से बारिश होने लगी और शेट्टी जो है लिटिल फर ट्री के नीचे जाकर छुप जाता है पानी से बचने के लिए। He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. बहुत जल्दी ही बारिश जो है रुक गई। शेट्टी was happy that he could not get wet. He did not get wet. शेट्टी जो जादूगर था उस लिटिल फर ट्री के नीचे खड़ा था, तो उसकी शाखाओं से मैजिशियन जो था शेट्टी वो भीगा नहीं और बहुत खुश था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। आस्क फॉर 4 विशेस। जो जादूगर था उन्होंने लिटिल फर ट्री से कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें 4 विश देता हूँ, यानी कि 4 इच्छाएं देता हूँ, तुम जो मांगोगी उन चारों में से पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही इट विल ग्रांट देम सेड द मैजिशियन। ग्रांट देम यानी वो विश जो विश मांगेंगी लिटिल फर ट्री उसको पूरा करेगा। तो ये जादू
जो मैजिशियन शेट्टी था उसने ये जादू से लिटिल फर ट्री को कहा कि तुम जो मांगोगी वो पूरा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 4 विशेस उन्होंने दिया था। जो मैजिशियन था उन्होंने सिर्फ 4 विशेस लिटिल फर ट्री को दिए थे और कहा कि मांगो, क्या मांगती हो। नेक्स्ट पेज। द sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो लिटिल फर ट्री ने कहा कि मेरे जो लीव्स हैं वो नीडल शेप के हैं, अगर आप इसको चेंज कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तब तो जो नेस्ट बनाती है चिड़िया वो भी आएगी हम पर और बैठेगी और नेस्ट बनाएगी। ओके। और तो उसने कहा कि काश मेरे जो लीव्स हैं वो ग्रीन हो जाते, हरे कलर के लीव्स हो जाते। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। उसकी जो लीव्स थी वो ग्रीन हो गई, उसका विश जो था वो पूरा हो गया था। अब नेक्स्ट, सून ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। जो ग्रीन लीव्स जादू से फर ट्री पाई थी उसको गोट ने खा लिया। Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अब जो लिटिल फर ट्री थी उसने एक विश मांगी थी, ओके, और वो पूरा भी हो गया। अब उसने ग्रीन लीव्स के बाद उसने कौन से लीव्स मांगे सेकेंड विश में? उसने मांगे गोल्ड यानी सोने के लीव्स। वो विश भी पूरी हो जाती है। और जैसे ही लिटिल फर ट्री के पास सोने की लीव्स आती हैं वहाँ पे रॉबर्स और थीव्स आ जाते हैं, चोर, उन्हें लूटकर उसकी लीव्स को लेकर चले जाते हैं। और फिर लिटिल ट्री फिर उदास हो जाती है और अपनी सिस्टर से बात करती है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि फिर से आपको ट्राई करना होगा और इस बार देखिए। तो इस बार लिटिल फर ट्री ने गोल्ड लीव्स मांगे। उसकी ये विश भी पूरी हो गई। उसके सारे लीव जो हैं वो सोने के हो गए। और जैसे ही नेक्स्ट उसके लीव्स गोल्ड के हो गए तो वहाँ पे रॉबर्स आए और सारे गोल्ड के लीव्स चुरा कर ले गए। ए मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। मैन्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। अब देखिए फर ट्री ने क्या कहा, मेरे लीव्स तो सारे जो रॉबर्स हैं, थीव्स हैं, वो चुरा कर ले जा रहे हैं। काश मेरी लीव्स जो हैं वो ग्लास की हो जाए। ग्लास आप जानते हैं जो शीशा होता है उसे ग्लास कहते हैं। तो उसकी सारी जो लीव्स थी नेक्स्ट मॉर्निंग शीशे से हो गई। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे द ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। एट नाइट द विंड ब्लू। और जब उसके लीव्स शीशे के हो गए तो बहुत तेज हवा चली, वो ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। सारे जितने ग्लासेस के लीव्स थे शीशे के वो टूट गए और नीचे गिर के बिखर गए। नेक्स्ट पेज। ओ डियर, said the little fir tree, I like my old needle leaves best, for goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. तो लिटिल फर ट्री जो थी उसने कहा कि ये मुझे शीशे के लीव्स नहीं चाहिए, ये तो टूट गए। काश मेरी लीव्स जो मेरी पहले वाली अपनी खुद की लीव्स थी वो वापस आ जाए। अब 4 विशेस मैजिशियन ने दिए थे तो 4 पूरे हो गए। और जो 4th में उसने मांगा कि काश मेरी लीव्स पुरानी तरीके से हो जाएं जैसी मेरी थी। तो वैसे ही हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके जो लीव्स थे वो ऐसे नीडल शेप में हो गए। और ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। फर ट्री थी जो वो बहुत खुश हुई कि उसके वापस आ गए वो लीव्स और ऐसे ही वो हैप्पीली रहती गई। सो दिस वॉज द स्टोरी चिल्ड्रेन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 भी पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। Now let's do the tick correct answer.
The pretty little fir tree was happy with the gold leaves. But तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? So the answer for this question is a man stole them. Okay, next question. The fir tree was sad. The answer for this is second one, because it had needle like leaves. उसके पहले needle shape में थे ना, तो वो उससे खुश नहीं रहता था, तो unhappy रहता था. Next है, the fir tree was not happy with the gold leaves. इसका आंसर होगा a man stole them. गोल्ड कलर के जब उसके लीव्स हो गए तो एक आदमी आया और सारी पत्तियां उसकी चुराकर बोरे में भर कर ले गया. सो दिस वाज द टिक द आंसर करेक्ट. एंड ऐसे ही आपको सारे बुक के एक्सरसाइज लर्न कर लेने हैं चिल्ड्रन. सी ऑपोजिट्स प्लीज लर्न कर लीजिएगा. लाइट की ऑपोजिट क्या है? हैवी. वन यानी जीतना, तो उसकी ऑपोजिट है लॉस्ट यानी हारना. लव की ऑपोजिट है हेट. देन फुल की ऑपोजिट है एम्प्टी. और ओल्ड मैन इज वाइज. वाइज की तो ऑपोजिट है फूलिश. सो चिल्ड्रन, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स. यू हैव टू स्टडी इट. ओके, नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग. सो चिल्ड्रन, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ लिटिल फर ट्री. मैजिशियन मीन्स जादूगर. सडन मीन्स एकाएक. बिगैन. बिगैन मीन्स शुरू हुआ. शेल्टर. शेल्टर मीन्स सुरक्षित जगह या पनाह. सून. सून मीन्स जल्दी. स्टील. स्टील मीन्स चुराना. इंस्टेड यानी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर ये शब्द यूज़ किया जाता है. गेट वेट भीगा हुआ. ग्रांटेड. ग्रांटेड मीन्स किसी काम पर टिप्पणी करने से पहले उसे सच मानना. प्रिटी. प्रिटी मीन्स आकर्षक, बहुत सुंदर. फर ट्री यानी देवदार का वृक्ष. So children, these were word meanings. I hope you will study it for your exams. Next is question answers. What was the name of the magician who needed shelter? Why? तो magician का क्या name था? शेट्टी. What was the first wish of little fir tree? Little fir tree ने सबसे पहले green leaves मांगी थी, है ना? तो firstly, in the little fir tree wished to have green leaves like its other friends had. Next question, what did Shetty do when it started raining heavily? Shetty ran towards the fir tree for shelter when it started raining heavily. Okay. Next is, who ate all the green leaves of fir tree? A goat came and ate all the green leaves of fir tree. एक बकरी आती है और सारी green leaves जो है वो गोट खा जाती है. Next question, how many wishes did the magician grant to the fir tree? Magician जो था उसने fir tree को कितनी इच्छा, कितनी wishes क्या कही थी? 4 wishes कहे थे ना. तो the magician granted 4 wishes to the fir tree. So children, that's all for today and I hope you will study it. and आपके ऐसे में दिवाली आएगा. दिवाली पे आपको 5 लाइन्स राइट करनी है. जो भी मैंने लिखवाया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. उसमें से कोई भी 5 आपको लर्न करनी है. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. दीज आर एक्सरसाइज ऑफ द बुक. बुक की एक्सरसाइज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मैंने फिल करवा दिया था. ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपेयर वेल. एंड प्लीज़ go to the office and collect your copies for writing the answers. Thank you.